First of all, I'd like to thank Somen Bhomik. He is one of my very good friend. He has given me call a few days back that I must say something about my life and my art practices. Somen, thank you so much. And he is a very good art painter and independent art curator. And most recently, he started, documenting art and artists, and which is very, very important in India. I have seen in many countries that the documentation is, during that period of time, critics and curators, they are documenting art and artists, but in India it is very much rare. But Sumen, he has started this work, and for that, Sumen, you are doing fantastic job. मेरा काम ऐसा है कि सब लोग कहता है कि आई एम एन abstract painter. But for me, I don't consider myself that I'm an abstract painter. First and foremost, this is very good justification from my side that I don't consider myself an abstract painter. See, abstraction, it is very much exists in your mind only. While consciously you are doing something, your subconscious mind, it is always act an important role. That subconscious mind, it is in the form of abstraction. But once you are trying to copy it from that subconscious mind on the surface, with that abstraction, it is finished there itself. Nothing is abstract. Nothing is abstract. See, one thing is that the landscape painters or any figurative painters or anything, though they have the concept behind it, but the common viewers, they immediately can connect with that elements. But there are some painters, their applications, which is not easily understand. But you need to have little study on that particular work. That is what though it is very much difficult to connect with the word, it is not called the abstraction. Abstraction is very much lies in your mind only. तो मेरा इसीलिए है, मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटर में कहता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पेंटिंग देख सकते हो कि कोई भी रिकॉग्नाइजेबल एलिमेंट्स नहीं है इसमें, कोई आप इमीडिएटली इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हो. बट फॉर मी इट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट. I'm a painter that I'm having preconceived knowledge before I start making the painting. एब्स्ट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि आप कलर्स मिक्स कर लो और कैनवस में या कोई किसी सरफेस में आप कलर थ्रो कर दो एंड यू विल बिकम एन एब्स्ट्रैक्ट पेंटर. इट इज नथिंग लाइक दैट. तो आपको किसी भी काम करने के लिए सबसे पहले आपको बहुत कुछ समझना होता है, आपको अपने आप को अंडरस्टैंड करना होता है. इतना इजी नहीं है एक पेंटिंग क्रिएट करना. जैसे एक चाइल्ड का जो ग्रोथ होता है, उसका जो माँ के पेट में होता है, जिस तरह से वो डेवलप होता है, उस प्रोसेस, द सेम प्रोसेस वी हैव टू कम अक्रॉस द सेम. वी आर द आर्टिस्ट. It is not that much easy that immediately you can do something. You have to have so much understanding about you first and about the circumstance. Whatever it is depicting on the surface, it is coming from your circumstance only. आप मुझे कहते हो कि imagination, yes, imagination is very much there. बिना imagination से तो आपको कुछ करना ही नहीं, आप कर ही नहीं पाएंगे ना. बट मेरे ख्याल से एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, इसके बारे में मैं और बहुत कुछ बोलना पड़ेगा. But first and foremost, I would like to tell you, Sumen, that I am not at all an abstract painter. Yes, my applications are different. Every artist there have their own way of understanding about their elements and applications and whatever materials they are using. They are having their own understanding about those materials. बट मैं कभी कभी ऐसा है कि मैं थोड़ा सा 3 डायमेंशनल एलिमेंट्स को भी अपना पेंटिंग में असेंबल करता हूँ. सो आई एम हैविंग ओन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग मुझे कैसे पेंटिंग करना है, कैसे मेरा मन में जो है, व्हाटएवर इट इज
they are inside me. I have to oze out with that. मुझे वहाँ से निकलना है. उसको निकलने के लिए जो जरिया होता है, जो जिस तरह से मैं उसको निकालना चाहता हूँ, उसके लिए मैं whether this the color is required and other elements are required, I assemble everything on my canvas. Thank you. Well, today I'd like to start with something else. जो म्यूजिक सुनाई दे रहा है, गज़ल मुझे बहुत पसंद है. खास करके इवनिंग के टाइम में गज़ल के साथ और थोड़ा सा ड्रिंक्स हो जाए और काम हो जाए, पेंटिंग्स रहे, दोस्त लोग रहे साथ में, बहुत कुछ अजीब महसूस होता है. It gives a very different feelings. आज मैं सुमेन को एड्रेस करके और कुछ बताना चाहता हूँ. एक आर्टिस्ट का जो लाइफ होता है, ये लाइफ सिर्फ जो पेंटिंग का जो फ्रेम होता है या कोई किसी एक सरफेस के जो फ्रेम होता है, उसी में बंद नहीं रहता है. इसके बाहर एक दुनिया है. उस दुनिया में भी यू हैव टू हैव ट्रेवल टू एक्वायर समथिंग फ्रॉम दैट सोसाइटी ऑल्सो. तो इसीलिए आज मैं ये इवनिंग जो है, मेरा एक फेलो आर्टिस्ट है, उनका नाम है भरत जैन, उनके स्टूडियो में हूँ. एंड यू कैन सी द पेंटिंग एट माई बैक. इट इज द ब्यूटिफुल पेंटिंग which is painted by my fellow artist Bharat Jain. So most luckily, he has invited me to his studio, and I'm fortunate enough to see his work today. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. अब हम कोई कमर्शियल आर्ट का जो पर्सपेक्टिव है, उसमें हम लोग नहीं है. हम जो पेंटिंग करते हैं, स्कल्पचर्स बनाते हैं या किसी भी विजुअल आर्ट का फॉर्म हम क्रिएट करते हैं, इसके साथ साथ एक एसोसिएशन जो है, वो एसोसिएशन बहुत जरूरी है. आर्टिस्टों के साथ बैठना, एक दूसरे के साथ बातें शेयर करना, हम क्यों पेंटिंग कर रहे हैं, क्या पर्पस है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, उनका काम करने का जो तरीका है वो सब देखना, और मेरे जो काम करने का जो तरीका है उनको बताना. ये सारी चीज बहुत मैटर करते हैं लाइफ में. तो आज मुझे बहुत खुशी की बात है कि मैं आज उनके स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ. इसके साथ साथ मैं और कुछ चीज़ें I'd like to recall my past also. While I was born in Assam, basically I'm from Assam, and studied in MS University, Baroda. I have completed my bachelor's and master's from Baroda MS University. After completing my master's, I shifted to Delhi. And since that, since my childhood, I had tremendous problem in my life. But वो problem में हमेशा एक बहुत खुश होके उस सबको एक्सेप्ट करने की कोशिश करता था. कभी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम होने नहीं देता था. यस, प्रॉब्लम तो आती ही है लाइफ में. प्रॉब्लम नहीं होगा तो लाइफ का मजा ही कुछ कैसे समझ में आएंगे, क्या है, कैसे उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे. तो ये सारी चीज है. असम में जब मैं पैदा हुआ था, आज आई एम टॉकिंग अबाउट 45 ईयर्स पहले की बात है. वहाँ के जो सिचुएशंस था, पॉलिटिकल सिचुएशंस बोलो, इकोनॉमिकल कंडीशंस बोलो,
सोशल सर्कमस्टेंस के बारे में बोलो, उसके साथ साथ बहुत सारे डिस्टर्बेंस था उस टाइम के सोसाइटी में। अभी खैर वो सब बहुत कम हो गया है। उसमें भी एक आर्ट और एक आर्टिस्ट कैसे पैदा होता है, वो मैं खुद ही एग्जांपल हूँ। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, एंड आई वाज ऑलवेज बीन डिस्करेज एंड by my neighbors and my teachers also sometimes. मेरा टीचर्स सोचते थे ये लड़का इतना एवरेज बच्चा है, ये पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, एंड व्हाट ही इज गोइंग टू डू इन हिज लाइफ। बट वन ऑफ माय टीचर, ही इज वेरी नोन पेंटर, ही इज स्वर्गीय प्रणब बरुआ। He always encouraged me, Prashant, you can do something. You can do something in the field of art. You become an artist. उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया था, whatever he has told me during that time, still it is been stored in my mind, and I cannot forget all these things in my life. तो वहां से निकल के आना, बहुत सारी डिफिकल्टीज के साथ आपका पेंटिंग करना, स्कल्पचर्स बनाना, ये सारी चीज मैंने कभी आर्ट को बंद होने नहीं दिया था। हमेशा चलते चलते गिर जाता था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता था लाइफ में, फिर भी मैं उठ जाता था और मैं एक खुद ही अपने आप को सहारा बना लेता था कि यस प्रशांत, यू हैव टू गो अहेड, यू कैन नॉट स्टॉप योरसेल्फ। तो इसीलिए दोस्त, फ्रेंड्स मुझे बहुत मैटर करता है। जिस तरह से मेरा फेलो आर्टिस्ट के साथ मैं सारे चीज शेयर करता हूँ, मेरे जितने सीनियर आर्टिस्ट है उनके साथ भी मैं बैठ के सारी चीज शेयर करता हूँ, वो लोग भी मेरे साथ बैठ के शेयर करते हैं। एक चेन जैसा होता है। इसको मैं जो मेरे साथ मेरा सीनियर्स ने मुझे जिस तरह से हेल्प किया था और आगे बढ़ने का जो एक रास्ता दिखाया था, मैं भी हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं वो सारी चीज़ मैं अपना फेलो आर्टिस्ट के साथ में शेयर करूँ। मेरा जो आने वाला जो जनरेशन के जो आर्टिस्ट होंगे उनके साथ भी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो लोग कभी भी अपना किसी भी सिचुएशंस में वो अपना काम कभी भी बंद ना करें, अपना काम करना है। और आज अंधेरा है तो कल जरूर उजाला होंगे। ये प्रकृति का एक नियम है, इसीलिए कभी भी डिमोरलाइज होने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं एक पेंटिंग कर पा रहा हूँ, जो मैं मेरा जो डिज़ायर था, while I was in class 9, one of my teacher, he has told me that, somebody can become an artist from this class, somebody can become a sports personality from this class, and somehow, it is there in my mind that, I determine myself that, yes, Prashant, you have to do something in life, and particularly in the field of art. Thank you.